So how are you guys doing? How is everybody? I hope everybody is doing well. All of you are giving your attempt in 2027, or are there some students here who want to give their attempt later also? Okay, so almost all of you are appearing in 2027. Great. So guys, we have our orientation session, and our job today is to basically understand everything around the exam so that we can. Achha, there are people from 2028 also. Okay. So our job is today to understand how we are supposed to study for this exam and how this course is going to help you, right? So there are two steps here. So we basically have to understand today कि UPSC की requirements क्या हैं, and on the basis of those requirements we have to understand what is it that this course is going to do for you and what is it that you have to do to utilize this course most effectively, right? To do that, I will first recommend that all of us should get a notebook out. And once you have a notebook out, you can just write ready in the chat box. ठीक है, आप एक बार एक notebook निकाल लीजिए and then please write ready in the chat box once you have a notebook ready, because there will be some things that you will need to note down today. ठीक है, there are some things that we'll have to note down and there will also be some homework for you. It's not going to be just a one way communication कि मैं आपको आके बता के कुछ चला गया, आपको भी मेहनत करनी होगी, right? So I can already see some people have written ready. बाकी लोगों का भी मैं वेट कर लेता हूँ. I'll just wait for 2 more minutes ताकि आप लोग एक नोटबुक निकाल के रेडी हो, and then we'll start. ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट. सो गाइज, ताकि आप अगले आधे घंटे तक समझ सकें कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फॉर हाफ एन आवर आई विल जस्ट वांट टू टॉक टू यू वन टू वन, ताकि आप आपस में बात ना करें. फॉर द नेक्स्ट 30 minutes योर चैट इज गोइंग टू बी ऑफ, so that you don't get distracted and you are actually able to listen to basically what I have to tell you. And after these 30 minutes, then we can take whatever questions etc that you have. ठीक है, so the chat is going to be disabled for the next 30 minutes, and after that whatever questions you have I'm going to take. So in today's session we are basically going to understand what is it that is required to clear the exam, and I'm going to talk about my own experience as to how I have made it in this exam and how the process that gets us results can be inculcated. तो पहले तो एक बात समझते हैं, इस वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है. द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वर्ड हैविंग द राइट प्रोसेस, है ना. आप में से आई एम अज्यूमिंग एवरीबडी वॉचेस क्रिकेट. सो इन 1983 one very special thing happened for the Indian cricket team, right? What was that? 1983 में कुछ हुआ हमारी क्रिकेट टीम के लिए, which was a very special thing. What happened in 1983? चैट ऑन है, आप बता सकते हो. In 1983, of course, I'm sure most of you know, what did we do that was very special? We won the World Cup in cricket, right? The Cricket World Cup was won in 1983. Correct? Okay, great. इसके बाद, who did we defeat in the final in the World Cup? We defeated West Indies. Okay. West Indies at that time was the best team in the world, right? They had won the World Cup in 1975. They had won the World Cup in 1979. And in 1983, they lost in the final to India in a surprise event where they just had to chase 183 runs in 60 overs, but somehow they lost. But कई लोगों को, शायद मुझे भी ये बात नहीं पता थी, 1983 के वर्ल्ड कप के बाद 1984 में या 1985 में वेस्ट इंडीज इंडिया के एक टूर पे आई फॉर अ 7-match or 5-match series in India. The West Indies cricket team came. You know what was the result of that? Can you guess what was the result? A 5-match cricket tour happened, right? West Indies had come to India for a cricket tour. This was in 1985, I think, and this was after we were world champions. So the West Indies had come
to play in India at the home of the world champions in 1985. So वर्ल्ड चैंपियंस के घर पे एक मैच है, 5 मैच की सीरीज है, दे आर वर्ल्ड चैंपियंस, दे वन इन द फाइनल एंड वेस्ट इंडीज वन 5-0. ठीक है. उसके बाद 1987 का वर्ल्ड कप, 1991 का वर्ल्ड कप, 1995 का वर्ल्ड कप, 1999 का वर्ल्ड कप एंड 2003 का वर्ल्ड कप. टिल 2003 when we reached the final, India was nowhere उसके बाद, right? Let's compare this story to what is happening now in the Indian cricket team. अब क्या हो रहा है? When did we last win the World Cup? इसके बाद हम वर्ल्ड कप कब जीते हैं? रिसेंट टाइम्स में. ठीक है, T20 वर्ल्ड कप इज ऑल्सो अ वर्ल्ड कप, राइट? तो अब हम कब जीते हैं वर्ल्ड कप? अब आप कह सकते हो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई है, इंडिया जीता नहीं है अभी तक, बट 2 बार फाइनल में आया है. 2011 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता 50 ओवर, फिर 2024 में इंडिया शायद फाइनल में हारा, राइट? देन वी वन द T20 वर्ल्ड कप ट्वाइस इन रीसेंट मेमोरी. ठीक है, वी आर कंसिस्टेंटली रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड. चैंपियंस ट्रॉफी जीती है हमने रिसेंटली. कैन यू सी दिस डिफरेंस? यहां पर जो हो रहा है और यहां पर जो हो रहा है, आउटकम टेक्निकली सेम है कि अच्छा यार हमने वर्ल्ड कप जीत लिया. दिस इज ऑल्सो अ वर्ल्ड कप विक्ट्री एंड दिस इज ऑल्सो अ वर्ल्ड कप विक्ट्री. बट इज देयर अ डिफरेंस? Is there a difference in these two events? Yes. The difference is that here the process is right. है ना? यहां पर it was individual brilliance of some very brilliant people. Kapil Dev, of course, very brilliant captain. ठीक है, और उन्होंने जिता दिया. यहां पर प्रोसेस ठीक है. सो पहले क्वेश्चन था कि तेंदुलकर को कौन रिप्लेस करेगा. देन क्वेश्चन बना कि धोनी को कौन रिप्लेस करेगा. फिर क्वेश्चन बना कि विराट कोहली को कौन रिप्लेस करेगा. एंड नाउ देयर इज नो लॉन्गर अ क्वेश्चन बिकॉज वी हैव टू मेनी प्लेयर्स, टू मेनी गुड टीम्स, राइट? मतलब हम इंडिया में शायद 2 टीम बना सकते हैं और दोनों वर्ल्ड चैंपियन बन सकती हैं. वी हैव अ 14-year-old who's hitting centuries for fun, right? What changed? क्या चेंज हुआ? What is the different thing? वर्ल्ड कप वहां भी है, वर्ल्ड कप यहां भी है, बट यहां कुछ डिफरेंट है. यहां शेयर डोमिनेंस है इंडिया की, राइट? इंडिया इज एक्चुअली विनिंग एनी क्रिकेट मैच इंडिया गोज टू. वी एक्सपेक्ट दैट इंडिया विल डोमिनेट, इंडिया विल विन, इंडिया इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड बिकॉज इंडियाज प्रोसेस इज करेक्ट. ग्रास रूट्स लेवल तक क्रिकेट पहुंच चुका है. डिड यू नो दैट वी हैव 740 डिस्ट्रिक्ट्स एंड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री देयर इज अ सुपर सॉपर. सुपर सॉपर क्रिकेट में तब चलाते हैं जब बारिश हो जाती है ग्राउंड में. वो एक सुपर सॉपर 10 लाख रुपए का आता है. ठीक है, और वो इंडिया की हर डिस्ट्रिक्ट में है. दैट इज हाउ वेल आवर प्रोसेस हैज वर्कड. नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं है, ब्रिलियंस नहीं है, माइंडसेट नहीं है, कुछ नहीं है, प्रोसेस है. आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ प्लेइंग क्रिकेट विद प्रोफेशनल प्लेयर्स ऑल्सो. आपको अगर लगता है आप क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तो कभी किसी डिस्ट्रिक्ट के, 2 डिस्ट्रिक्ट्स के आपस में जो स्टेट में मैच होता है ना, उसमें जाके खेल लेना. बॉल नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि एट एवरी डिस्ट्रिक्ट, एट एवरी स्टेप देयर आर पीपल प्लेइंग, देयर आर रिवॉर्ड्स फॉर प्लेइंग. एक 2 डिस्ट्रिक्ट का मैच हो, मान लो गुड़गांव और फरीदाबाद का मैच हो, वनडे इंटरनेशनल अंडर 16 मैच बिटवीन गुड़गांव एंड फरीदाबाद इन हरियाणा. इसमें जो एक प्लेयर खेलता है उसे एक मैच खेलने के 40,000 रुपीज मिलते हैं. फॉर वन मैच, फॉर एन अंडर 16 गेम बिटवीन गुड़गांव एंड फरीदाबाद. इनकॉन्सिक्वेंशियल, हमें पता भी नहीं है कि शायद ऐसे मैचेस होते हैं. इसमें जो एक प्लेयर खेलता है, एक प्लेयर, उसको 40,000 रुपीज पर मैच मिलते हैं. दिस इज प्रोसेस चेंज. कि यार ठीक है, टिल द वेरी लास्ट, टिल द वेरी ग्रास रूट्स, money is there, rewards are there, processes are there, coaches are there, grounds are there, things are working, right? ये पॉइंट समझ आ रहा है?
यार अगर वैभव आप यहाँ पे बोलोगे कि इंडिया तो आयरलैंड से हार गई, यू आर बेसिकली सेइंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट यू आर सेइंग, ठीक है? डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग? कि यहां पर एक प्रोसेस है, यहां पर एक टैलेंट और लक थी. दिस डिफरेंस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर आवर प्रिपरेशन. जब प्रोसेस ठीक होती है तो रिजल्ट्स डिले हो सकते हैं, बट रिजल्ट्स कंसिस्टेंट होते हैं. एक आध बार कुछ खराब हो सकता है, कभी आपकी लक खराब हो सकती है, जैसे हम आयरलैंड से हार गए, हमारी सीरीज खराब हो गई, हम वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गए, ट्रेविस हेड आउट नहीं हुआ, वगैरह वगैरह. बट कंसिस्टेंटली यू विल सी डोमिनेंस व्हेन प्रोसेसेस आर राइट, है ना? यहां पर क्या है, एक बार का तुक्का है, या एक बार की अच्छी किस्मत है, या एक बार की ब्रिलियंस है. जब हमें प्रिपेयर करना है यूपीएससी के लिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए. We want to ensure that there is absolute brilliance consistently, and we need to dominate, and that is the mindset that we need to keep. तो अपनी पूरी यूपीएससी जर्नी में पहली बात आप ये याद रख लो कि किसी का तुक्का कभी ना कभी लग सकता है, बट जिसकी प्रोसेस ठीक है, दे डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड. कई बार आपने ये कहानियां सुनी होंगी कि ओ ही वाज सच अ डिजर्विंग कैंडिडेट बट ही डिड नॉट मेक इट. ऐसा होता है यूपीएससी में. But you will never hear the story that this was not a deserving candidate and then still they made it. जितने लोग सिलेक्ट होते हैं वो डेफिनेटली डिजर्विंग होते हैं ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. एंड कीप दिस स्टोरी इन माइंड ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 years व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, कि यार मुझे ऐसा बनना है कि मेरी प्रोसेस हमेशा ठीक हो. इफ माई प्रोसेस इज ऑलवेज करेक्ट, आई विल गेट रिजल्ट कंसिस्टेंटली, एंड दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश हियर. राइट? द आइडिया इज कि जो प्रोसेस हमने सेट करी है, जो हमने एक रेगुलर सिस्टम बनाया है, उससे रिजल्ट आना चाहिए. टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेस क्या है. व्हाट इज द प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो डेली टू इंश्योर दैट यू कंसिस्टेंटली गेट रिजल्ट्स इन दिस एग्जाम. राइट? ठीक है. टू डिस्कस दिस, लेट अस लुक एट द सिलेबस फर्स्ट. आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को ये पता है कि एग्जाम में प्रीलिम्स होता है, सीसैट होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है वगैरह. तो मैं उन डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. आई थिंक आई मच रादर टॉक अबाउट हाउ द एग्जाम इज स्ट्रक्चर्ड, एंड स्ट्रक्चर्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ यू आर सपोज टू रीड फॉर इट. तो हम सबको पता है कि हमें एक जनरल स्टडीज का पेपर देना है, एक सीसैट का पेपर देना है इन प्रीलिम्स. तो सबसे पहले हमें प्रीलिम्स क्लियर करना होगा, फिर हमें मेंस क्लियर करना होगा, और फिर हमें इंटरव्यू क्लियर करना होगा, या इसे आप पर्सनालिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं. राइट? तो हम आज इन तीनों की डीप डाइव जाके प्रोसेस समझेंगे, और समझेंगे कि एग्जाम कैसा है और एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या चाहिए. बात करते हैं प्रीलिम्स की. प्रीलिम्स में हमें पता है कि एक जनरल स्टडीज का पेपर है और एक सीसैट का पेपर है. करेक्ट? ये दोनों पेपर हैं. मेंस में हमें पता है कि एक एसए का पेपर है, जनरल स्टडीज 1, 2, 3 और 4 का पेपर है, और ऑप्शनल का पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2. इंटरव्यू की बात हम बाद में करेंगे. तो अब एक एक स्टेप पे चलते हैं, एक एक स्टेप में देखते हैं कि क्या रिक्वायर्ड है, और एक एक स्टेप पे देखते हैं कि हम कैसे मार्क्स ला सकते हैं. बात करते हैं जनरल स्टडीज के पेपर की, इस पेपर की. यहीं से कट ऑफ डिसाइड होनी है प्रीलिम्स की. दिस इज व्हाट मैटर्स फर्स्ट. तो इसका सिलेबस देख लेते हैं. आज के बाद अगर आपने किसी भी चीज का सिलेबस देखना है, रेफरेंस लेना है, जानना है उसके बारे में, देयर इज ओनली वन सोर्स यू विल फॉलो, एंड दैट इज द यूपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन. कभी किसी कोचिंग की वेबसाइट से, किसी रैंडम सोर्स से, किसी रील से, किसी वीडियो से सिलेबस वगैरह नहीं देखना है. सिलेबस आपको डायरेक्टली यूपीएससी की वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना है. This is what the syllabus says for general studies, right? And let's read the syllabus carefully. It says current events of national and international importance. So current affairs एक कहानी हुई. Then it says history of India and Indian national movement. Okay. India and world geography, physical, social, economic geography of India and the world. Okay. Indian polity and governance,
कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एक्सेट्रा. इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स. General issues of environmental ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization. ये लाइन इग्नोर कर देना क्योंकि ये झूठ है. मेरे को ही पढ़ाना है आपको एनवायरमेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए होगी. एंड लास्टली जनरल साइंस, राइट. ये सारी चीजें हमसे पूछी गई हैं. तो इसकी अगर हम एक स्मॉल समरी देखें तो इट लुक्स लाइक दिस. ये सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं. इन सब्जेक्ट से फिर हमें 100 MCQ सॉल्व करने हैं. उसमें करेक्ट ऑप्शन के मुझे +2 मार्क्स मिलेंगे, रॉन्ग ऑप्शन के मुझे -0.66 मार्क्स मिलेंगे. एंड अल्टीमेटली आई हैव टू सिक्योर 100+ मार्क्स. सो 200 में से जो मैक्सिमम मार्क्स हैं मुझे 100+ मार्क्स लाने हैं. ऑफ कोर्स कट ऑफ 100 कभी नहीं गया है. एटलीस्ट इन द लास्ट 5 years देयर हैज बीन नो 100 कट ऑफ. बट मैं कट ऑफ को क्यों देखूं? मैं देखता हूं कि मेरा पोटेंशियल क्या है. मैं चाहूंगा कि मैं कंफर्टेबली इजीली प्रीलिम्स क्लियर करूं. तो मेरा टारगेट होगा कि मेरे 100+ मार्क्स आ जाएं. अब 100+ मार्क्स लाने के लिए एटलीस्ट 50% MCQs मुझे सही करने हैं, नेट करेक्ट, राइट. नेगेटिव हटा के मुझे 50 MCQs ठीक करने हैं. इसका मतलब मुझे इन सब सब्जेक्ट्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, राइट. इन सब सब्जेक्ट्स में मुझे पढ़ना है. तो अब एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना होता है, राइट. मान लीजिए हम पॉलिटी का एग्जाम्पल ले लें. हम पॉलिटी का एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि पॉलिटी कैसे पढ़ना होता है. एंड देन वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ एवरी अदर सब्जेक्ट एंड वो सेम अप्रोच वहां पर लगाई जा सकती है. ठीक है. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग. हम इस स्टेप में सारी चीजें देखेंगे और हर चीज को हम डीप डाइव जाके एग्जामिन करेंगे कि अच्छा प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज क्लियर करना है तो 100 मार्क्स लाने हैं. 100 मार्क्स लाने हैं तो 50 नेट करेक्ट MCQs करने हैं. 50 नेट करेक्ट MCQs करने हैं मतलब हर सब्जेक्ट को पढ़ने का कुछ तरीका होगा. तो एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका देख लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी वही तरीका लगा लेंगे. ठीक है. ओके. लेट्स से कोई भी सब्जेक्ट है, हम पॉलिटी की बात करते हैं कि मान लीजिए मुझे पॉलिटी प्रिपेयर करना है फॉर प्रीलिम्स. तो क्या आइडियल अप्रोच है? व्हाट वुड बी द आइडियल अप्रोच? अगर मुझे पॉलिटी प्रिपेयर करना है फॉर प्रीलिम्स तो मैं कहूंगा यार पहले मुझे सबसे पहले NCERT पढ़नी है ऑफ क्लास 11th एंड 12th. काइंडली 11th क्लास से पिछली कोई भी NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है. 6th 7th 8th 9th की NCERT पढ़ने प्लीज मत बैठ जाना. इनसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं. आते भी हैं तो ये बाकी बुक्स में कवर्ड हैं. इट्स एन एग्जाम मेंट फॉर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, नॉट फॉर स्टूडेंट्स इन 7th and 8th क्लास. You will utterly and sheerly waste your time if you read NCERTs from 6th to 10th. अगर बहुत फोमो फील हो रहा हो तो पहले 11th 12th की NCERT और स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद 6th to 10th की NCERT पढ़ लेना. और ये लाइन अपने सामने लिख लो क्योंकि बहुत लोग आएंगे आपको फोमो क्रिएट करने के लिए कि 6th to 10th की NCERT इंपॉर्टेंट होती है, राइट. तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. ये चीज आज जान लो. 11th 12th की NCERT ही पढ़नी है, उससे पहले की NCERT नहीं पढ़नी है. पढ़नी भी है तो बाद में देखेंगे. तो पहले मैं कहता है यार मैं 11th 12th की NCERT पढ़ लेता हूं. ठीक है. ओके. फिर मैं कहता है यार एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ लेते हैं, कोई एक स्टैंडर्ड बुक. जैसे M लक्ष्मीकांत एक स्टैंडर्ड बुक है, राइट. तो ठीक है यार फिर लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं. ये काम कर लेते हैं. अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? यूपीएससी के एग्जाम में कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है या यूपीएससी के एग्जाम में सिलेक्शन कैसे होता है? यूपीएससी कट ऑफ सेट नहीं करता. यूपीएससी को होता है कि यार मुझे प्रीलिम्स में 13,000 लोग लेने हैं. जो भी लास्ट बंदे के 13,000 रैंक जिसकी आएगी, जो उसके मार्क्स हैं वो कट ऑफ है. आई जस्ट हैव टू टेक 13,000 पीपल. आई डोंट केयर उनके मार्क्स कितने आए. कट ऑफ इज द मार्क्स ऑफ द लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट, राइट. तो मुझे दूसरों से कंपीट करना है, यूपीएससी से नहीं. यूपीएससी ने नहीं बता रखा कि 80 मार्क्स लाओगे तो मेंस दोगे, नहीं. आप टॉप 13,000 में हो तो आप मेंस दोगे, करेक्ट. सो आई हैव टू कंपीट विद अदर्स एंड बी बेटर देन अदर्स. प्लीज नोट दिस डाउन. ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है. ऑलवेज द एम हैज टू बी बेटर देन अदर्स. जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे मैं एक लेवल ऊपर जाके और बेटर काम करूंगा. So if my aim has to be better than others and I'm thinking that I have to be better than others, तो मैं देखता हूँ यार बाकी लोग क्या पढ़ रहे हैं. बाकी लोग भी यही किताबें पढ़ रहे हैं,
11th 12th की एनसीईआरटी सब पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत सब पढ़ रहे हैं. सो नाउ आई नीड समथिंग टू बी एटलीस्ट वन स्टेप अहेड. एक चीज तो मैं एक्स्ट्रा करूं. तो ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं एक रेफरेंस बुक ले लेता हूं. लेट से एक बुक आती है डीडी बसु साहब की, एन इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये डीडी बसु साहब की किताब भी मैं पढ़ लेता हूं. एंड लेट मी टेक दीज 3 थिंग्स, रीड देम. इसको मैं रेफरेंस की तरह यूज करूंगा, इनको मैं पूरा पूरा पढ़ूंगा और मैं अपना एक मटेरियल बना लेता हूं. क्या ये करने से मैं बेटर देन अदर्स हो जाऊंगा? अगर मैंने 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ ली, लक्ष्मीकांत पढ़ ली और डीडी बसु से मैंने कुछ रेफरेंस के लिए एक्स्ट्रा चीजें रेफर कर ली, तो क्या मैं बेटर देन अदर्स हो जाऊंगा? क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू गाइस थिंक? इज दिस सफिशिएंट टू बी बेटर देन अदर्स? अगर मैं इतना काम कर लूं तो क्या मैं बेटर देन अदर्स हो जाऊंगा? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट. नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. अगर आपको यस लग रहा है तो आपको शायद कंपटीशन का आइडिया नहीं है अभी. बिल्कुल भी नहीं होगा. ये काम बहुत लोग कर लेते हैं. नहीं होगा. तेरा आपको क्या लगता है? द क्वेश्चन, एक्चुअली द क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू इज, आर देयर 13,000 पीपल इन इंडिया capable of doing this job? Are there 13,000 people who can do exactly this? 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ना, लक्ष्मीकांत पढ़ना और डीडी बसु से रेफरेंस करके उसे पढ़ना. Of course, there are 13,000 people in India who can do this. तो मैं बेटर नहीं हो रहा हूं किसी और से, राइट? 13,000 लोग आराम से ये काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लोग ये काम कर सकते हैं, राइट? तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी. तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप इज, पढ़ना पॉसिबल है 13,000 लोगों के लिए, समझना कितने लोगों के लिए पॉसिबल है कि वो बुक पढ़ के ये बोल दें कि सर ये 3 किताबें हैं, मैंने पढ़ ली, अब आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, चाहे आप 1 साल बाद पूछ लेना, आप कुछ भी पूछ लो, मुझे याद होगा और कंसेप्चुअली भी मुझे समझ आता होगा. मैंने रटी नहीं है किताबें, मैंने समझी हैं. एंड इन अ मैनर ऑफ अंडरस्टैंडिंग I understand what these books are trying to say. So there is one step called reading, that okay, I read the books, मैंने highlight कर ली, notes बना लिए, whatever. And then the second step is that I actually understand what the books say. I have a complete idea of the concepts. And अगर मान लो मैंने आज जुलाई 2026 में ये पढ़ा है, तो even in 2027 August, when I'm giving my mains, I will know everything that I had read. I still understand it. Maybe मुझे 1-2 facts भूल जाएं, but broadly मैं आपको सारी बातें ठीक बता दूंगा. Let me demonstrate what this looks like. मैंने लास्ट पॉलिटी पढ़ा था in 2022, जिस साल में सिलेक्ट हुआ, right? 2022 में I read polity and I got selected with a rank of 297. अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं which is from April 20th, 2026. ये वीडियो सारथी के YouTube चैनल पे भी है, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं. मैंने उसकी बस एक क्लिप निकाल ली आपको दिखाने के लिए. इस April 20th, 2026 की वीडियो में क्या हो रहा है कि एम पुरी सर और मैं डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी की स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो एम पुरी सर थे और मैं था, और हम पॉलिटी की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे. तो एम पुरी सर ने कहा कि चलो शिवन बेटा मैं तुम्हारा टेस्ट ले लेता हूँ, और उनको बहुत शौक है मेरा टेस्ट लेने का. तो उन्होंने कहा शिवन मैं तुम्हारा एक टेस्ट ले लेता हूँ. मैंने कहा सर मुझे 4 साल हो गए हैं पॉलिटी पढ़े हुए, 2022 में पढ़ी थी मैंने लास्ट पॉलिटी. वो कहते नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, टेस्ट तो देना ही पड़ेगा. कहा ठीक है सर बताओ, देखते हैं क्या हुआ, लेट्स सी. आज शुरुआत में ओके सर, ओके थोड़ा सा पीछे करते हैं. What is the date of commencement of the constitution? ये या 1949. That's the date of adoption and enactment. What is the date of commencement of the constitution? Sir, 26 January 1920. जी, As the adoption act. 1949. तो पहला क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द डेट ऑफ अडॉप्शन एंड एनैक्टमेंट. बेसिक क्वेश्चन,
डेट्स पूछ रहे थे अभी तक, मुझे लगा चलो आसान टेस्ट है। फिर पूछा व्हाट इज द डेट ऑफ एनैक्टमेंट, वो भी मैंने बता दिया, आसान है, कोई इसमें कुछ अचीवमेंट नहीं है। आगे देखना आप ध्यान से कि क्या बात हो रही है, लिसन टू द वीडियो वेरी केयरफुली। That's the date of adoption and enactment. What's the date of commencement of the Constitution? Sir, 26 January 1950. You're right. That is the date of commencement. जी Now my next question to you is जी that date mentioned in the Constitution? In the preamble, तो the date mentioned is 26 November 1949 जी as the adoption and enactment date. जी नहीं सर, इट हैज टू बी मेंशन्ड बिकॉज उससे पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को अगर डिक्लेयर करना है तो समवेयर दैट डेट हैज टू बी मेंशन्ड, दैट इज You are assuming that. आई एम अज्यूमिंग। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे पूछा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। मैंने कहा सर 26 जनवरी 1950, बहुत कॉमन नॉलेज है, इसमें कोई अचीवमेंट नहीं है। देन ही आस्क्ड कि इज द डेट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सुना आपने? मैंने कहा नो सर, इट हैज टू बी मेंशन्ड बिकॉज उससे पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को डिक्लेयर करना और इनवैलिडेट करना नेसेसरी है। फिर उन्होंने पूछा आर यू अज्यूमिंग दैट, मैंने कहा यस सर आई एम अज्यूमिंग दैट। अज्यूमिंग बिकॉज एक कंसेप्चुअल आइडिया कि होगी मेंशन्ड इवन इफ आई हैव फॉरगॉटन द फैक्ट। ये वीडियो सारथी के यूट्यूब चैनल पे है। दिस वीडियो इज फ्रॉम 20th April, आप सर्च भी कर सकते हो जाके, यू कैन गो एंड वेरीफाई दिस, 2026। ठीक है, इस साल का प्रीलिम्स हुआ। इस साल का प्रीलिम्स कब हुआ? 24 मई 2026, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ लेटर। इस साल के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया, कैन यू रीड दिस क्वेश्चन? एक बार ये क्वेश्चन पढ़ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस साल के 2026 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है? देयर इज नो आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट स्पेसिफाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल बी ऑफिशियली कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, there is no article in the Constitution of India that specifies that Indian Independence Act and Government of India Act 1935 stand repealed. Third, there is no article in the Constitution of India that mentions 26 January 1950 as date of commencement of Constitution of India. Exactly वही क्वेश्चन है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, और क्योंकि थर्ड गलत है तो सेकंड भी गलत है। और उस वीडियो में हम यही डिस्कस कर रहे थे कि सर इट हैज टू बी मेंशन्ड बिकॉज इससे पहले जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हैं उनको इनवैलिडेट करना जरूरी है, राइट? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को सर इनवैलिडेट करना जरूरी है। You're right. That's the date of commencement. जी Now my next question to you जी is that date mentioned in the Constitution? In the preamble, तो the date mentioned is 26 November 1949 जी as the adoption and enactment date. जी नहीं सर, इट हैज टू बी मेंशन्ड बिकॉज उससे पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स को अगर डिक्लेयर करना है तो एक्ट। Do you see what I mean? This is the meaning of conceptual clarity. क्योंकि प्रोसेस ठीक है पढ़ने की। It's been 4 years since my selection. ठीक है, सिलेक्ट होने के बाद क्यों ही पढ़ूंगा मैं वो सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता नहीं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होता तो इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। आई टीच इकोनॉमिक्स, आई टीच साइंस एंड टेक, दैट्स फाइन। आई डोंट टीच पॉलिटी, राइट? ये सब्जेक्ट मैंने 2022 में लास्ट पढ़ा था, बट स्टिल I could get to the answer because of an understanding. Can you see what I'm trying to tell you? ये चीज समझ आ रही है आपको कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ हैविंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि पढ़ रखा है तो समझ रखा है, रटा नहीं है, याद नहीं कर रखा, अब्सॉर्ब कर रखा है। और क्योंकि अब्सॉर्ब कर रखा है तो इवन व्हेन टेस्टेड ऑन कैमरा ऑफ अ सब्जेक्ट दैट आई डिड नॉट नो, आई वाज एबल टू गिव द राइट आंसर एंड इट्स शेयर लक दैट द सेम क्वेश्चन अपीयर्ड, सेम क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स में, राइट? अब क्या ये करने से मैं बेटर देन अदर्स हो जाऊंगा? क्या लगता है आपको? इफ आई एम एबल टू डू दिस, अंडरस्टैंड लाइक दिस, विल आई बी बेटर देन अदर्स? क्या लगता है? वोट करा लेते हैं कि इससे बेटर देन अदर्स हो जाएंगे।
यू हैव 30 सेकेंड्स टू वोट। आपके स्क्रीन पे वोटिंग दिखा रहा होगा, वोट कर सकते हो आप। 30 सेकेंड्स हैं। अप या डाउन वोट दिखा रहा होगा, 30 सेकेंड्स में रिजल्ट आ जाएंगे। एंड जेन्युइनली थिंक अबाउट द वोट दैट यू मेक कि यार क्या ये सफिशिएंट है? अगर मेरी इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो गई, एम आई नाउ इन अ पोजिशन दैट आई कैन क्लियर दिस एग्जाम? एम आई नाउ इन अ पोजिशन दैट आई कैन क्लियर प्रीलिम्स? राइट? क्या अब मुझे लगता है कि हाँ मैं क्लियर कर सकता हूं? लेट्स सी आप लोग क्या वोट करते हो। दो ही ऑप्शन है, सर्टेन एक्सटेंट मत बोलना। कौन बोल रहा है? रूपा। डोंट से सर्टेन एक्सटेंट, ईदर यस और नो। डज दिस मेक मी बेटर देन 13,000 पीपल और नॉट? ओके, लेट्स सी द रिजल्ट्स। 64% कह रहे हैं यस, 35% कह रहे हैं नो। ओके, मेरा आंसर है नो। माई आंसर इज ऑल्सो नो। Maybe in terms of reading, I would have understood. शायद रीडिंग या पढ़ने के टर्म्स में मैंने समझ लिया है, बट क्या अब मेरी इस अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया गया है? हैव आई टेस्टेड माई सेल्फ? मुझे लग रहा है मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो गई। यहां तो एम पुरी सर ने मुझे ऐसे रैंडमली टेस्ट कर लिया, बट हम बात कर रहे हैं कि एज अ स्टूडेंट मैंने रीड कर लिया, मैंने इतना समझ लिया, बट हैव आई एक्चुअली बीन टेस्टेड? आंसर इज नो। तो मे बी नेक्स्ट स्टेप इज टू टेस्ट माई अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए लेट्स से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। आई सेड के चलो यार कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, और मैंने आई वेंट ऑल आउट एंड फ्रॉम 2013 टू 2026 आई सॉल्व्ड ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट आई हैड टू सॉल्व इन पॉलिटी। मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इनके सोल्यूशंस देख लिए, यहां पर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मुझे मिले मैंने उन पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर लिया। नाउ एम आई बेटर देन 13,000 पीपल? I read the books, I read an extra book also for understanding. I understood everything and then I went on and said कि यार PYQs भी कर लेते हैं, प्रीलिम्स के जितने क्वेश्चन आए हैं सारे कर लेते हैं। 12 साल के, जब इससे पहले का पॉइंट नहीं है, फॉर्मेट डिफरेंट था। 12 साल में कुछ 200 क्वेश्चन आए होंगे पॉलिटी के, मैंने 200 के 200 क्वेश्चन कर लिए, उनके सोल्यूशन भी देख लिए, उनको नोट डाउन भी कर लिया जहां मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिला। एम आई नाउ बेटर? फिर से पोल करते हैं, am I now better than 13,000 people? Yes or no? Let's see what you respond with. देखते हैं आप लोग क्या बोलते हो। Can you? I hope you guys can see the poll, right? I don't know if you can see the poll or not. Wait, I'll just start it again. 1 second. दोबारा start करते हैं। Okay, tell me now. Am I now better than 13,000 people? क्या मैं अब पहुंच गया हूं उस 13,000 वाली स्टेज पे? Am I now at a stage where I can say I'm better than 13,000 people and now everything is sorted? ये स्टेप था, ये मैंने कर लिया, बात खत्म। Okay, I'll stop and let's see the results. Okay, नंबर कम हो गया है, अब सिर्फ 43% लोग यस बोल रहे हैं। तो अभी भी आंसर है नो, कि नहीं यार इससे भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, मैं एक स्टेप और ऐड कर देता हूं। I'll add one more step. मैं कहता हूं यार सर ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे ना, मैं नए क्वेश्चन भी कर लेता हूं। I'll take some new practice MCQs and tests. MCQs कर लेता हूं, टेस्ट कर लेता हूं, और इन न्यू क्वेश्चन से, ये तो पुराने, नए क्वेश्चंस जो किसी कोचिंग ने बनाए हैं, ये तो यूपीएससी के बनाए हुए हैं, नए एमसीक्यूज में से खुद को टेस्ट कर लेता हूं। एंड यहां पर भी आई विल practice enough questions, and whatever I do in this test, whatever mistakes I made, I will learn from these mistakes and I will make notes of whatever I have done wrong.
एम आई नाउ फाइनली बेटर देन 13,000 पीपल? कि मैंने रीडिंग भी कर ली, अंडरस्टैंडिंग भी मुझे अच्छे से हो गई, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए 12 साल के, और मैंने कुछ टेस्ट भी दे दिए, नए एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए, और अब फाइनली जो भी गलतियां हुई उनको नोट भी कर लिया और इसको अच्छे से रिवाइज भी कर लिया. नाउ एम आई बेटर देन 13,000 पीपल? क्या अब मैं उस स्टेज पे पहुंच गया हूं दैट आई एम बेटर देन 13,000 पीपल? कि मेरा एटलीस्ट प्रीलिम्स हो जाएगा? यही बात कर रहे हैं ना हम, कि मेरा एटलीस्ट प्रीलिम्स हो जाएगा यार. आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी वॉट यू वोट नाउ. और अगर आप नो वोट करोगे तो आपको बताना होगा कि और क्या रहता है. ऐसे मजे मजे में नो वोट मत करना. टेल मी व्हाट एल्स इज लेफ्ट. कुछ बचा थोड़ी है प्रोसेस में. अगर आप नो वोट करोगे तो आपको बताना होगा कि सर ये चीज और रहती है, ये चीज नहीं करी सर आपने. ठीक है, लेट्स सी द रिजल्ट्स. ओके, 35% पीपल आर स्टिल सेइंग कि नहीं सर अभी भी कुछ रहता है. तो अब मैं उनसे पूछता हूं कि जिन्होंने नो वोट किया था, कि क्या रह गया, व्हाट इज लेफ्ट? अगर अभी भी आंसर नो है देन व्हाट इज लेफ्ट? मैंने रिवीजन मान लेते हैं, मैंने तो बोला था वैसे रिवीजन. ठीक है, मैंने रिवीजन भी कर ली. अब क्या रह गया? प्रीलिम्स की बात हो रही है सर, प्रीलिम्स की बात हो रही है, आंसर राइटिंग मत बोलो. चलो रिवीजन इंक्लूड करके तो यस है ना. इफ आई हैव रिवाइज्ड एंड आई रिटेन इट देन इट इज यस, राइट? इफ आई हैव रिवाइज्ड एंड आई एम एबल टू रिटेन इट, तब तो यस है. रिवीजन कर ली, करंट अफेयर्स एक अलग सब्जेक्ट है, हम पॉलिटी की बात कर रहे थे. ठीक है, देखो एक्चुअली प्रोसेस में इतना ही है. अगर आपने ध्यान से स्लाइड देखी होती तो यू वुड हैव नोटिस्ड दैट करंट अफेयर्स वाज अ सेपरेट सब्जेक्ट. इसको हम एक अलग सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं यहाँ पे. ये नहीं कि पॉलिटी के साथ थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ लिया और हो गया. वी ट्रीटेड लाइक अ सेपरेट सब्जेक्ट. बट फॉर दिस सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी नथिंग इज लेफ्ट इन दिस प्रोसेस. हाँ, आप रिविजन कह लो, रिटेंशन कह लो, but at least from the studying point of view nothing is left. Still my answer would have been, are you better than 13,000 people? No. Why? Because you need to do this for every subject. If you can do this for every subject, all 8 of them, then and only then are you better than 13,000 people, right? आपको ये हर सब्जेक्ट के लिए करना है, सिर्फ एक के लिए नहीं. You have to do it for every subject, and if you can do it for each subject, like every subject, you achieve this goal, then you are better than 13,000 people. Okay? अब ये every subject के लिए करना, इतनी मेहनत करना is a long time consuming process, and it will take a lot of time. चाहे कोई भी करे, आप करें मैं करूं, इसमें बहुत टाइम लगेगा, right? And this is where we come in. हम सारथी आईएएस में ऐसा कुछ नहीं करते यार जो आप खुद नहीं कर सकते. ऑनेस्टली बता रहा हूं, हमारी एक ही वैल्यू है कि हम आपका टाइम बचा सकते हैं. अगर आप खुद से ये काम करेंगे तो शायद आपको 4 से 5 महीने लगे, यहां आप 1.5 से 2 महीने में कर लेंगे. दैट इज ऑल वी डू, बिकॉज ऑल ऑफ दिस टेक्निकली यू कैन डू ऑन योर ओन. हम भी उन्हीं किताबों से पढ़ के आपको पढ़ाएंगे ना, हम ओरिजिनल किताब राइटर नहीं है. बट हाँ, हमने ये काम बहुत बार किया हुआ है, खुद किया हुआ है, किताबों को बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो आपकी हेल्प कर सकते हैं. तो अब इसी प्रोसेस को हम हर सब्जेक्ट के लिए सारथी आईएएस में रिपीट करते हैं. और कैसे करते हैं? व्हेन इट कम्स टू रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, वी गिव यू लेक्चर्स बाय experts who can predict prelims questions 1 month before the exam, experts who have been teaching for 25 plus years, and experts जो इस एग्जाम में सब इंटरव्यू तक गए हैं मिनिमम. आपसे जो भी बात करेगा
आपसे कल वरुण सर और हिमांशु सर ने बात करी, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपसे जो भी बात करेगा उसने मिनिमम यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, एंड इन सम केसेस पीपल हैव बीन सिलेक्टेड एज वेल। तो या तो उन्होंने ये एग्जाम निकाला है, या उन्होंने एटलीस्ट प्रीलिम्स और मेंस मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है, तब वो आपको पढ़ा रहे हैं, राइट? Along with that, we give you PDF notes. मेरा चैलेंज है आपको इन PDF नोट्स के बियॉन्ड फाइंड समथिंग विच इज रेलिवेंट, रिटन इन अ स्टैंडर्ड बुक बट नॉट कवर्ड इन दीज नोट्स। आई चैलेंज यू, आप किसी एक स्टैंडर्ड बुक से कोई एक ऐसा पॉइंट निकाल दो कि एग्जाम के लिए तो सर बहुत रेलिवेंट है, आपके नोट्स में नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज वी हैव रेड द बुक्स ओवर एंड ओवर अगेन टू इंश्योर कि इन नोट्स में सब कुछ कवर हो। तो ये जो रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, ये यहां कवर होता है, बट दिस वाज नॉट सफिशिएंट ना, एक और स्टेप भी तो था। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, दिस इज समथिंग वी कवर इन क्लास। क्योंकि हम सब आलसी हैं, तो हम, अगर मैं आपको कहूं घर जाके पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना, आप कहोगे नहीं सर नहीं हो पाएगा। बट हम क्या करते हैं, क्लास में पीवाईक्यूज करते हैं। आपने आज लेट से प्रेसिडेंट पढ़ा, तो प्रेसिडेंट के इमीडिएटली बाद, पढ़ने के इमीडिएटली बाद यू विल हैव अ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आज तक प्रेसिडेंट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको क्लास में सॉल्व कराए जाएंगे कि ये क्वेश्चन है सर बताओ ABCD में से कौन सा आंसर है। थर्ड स्टेप। अब ये भी इनफ नहीं था, देयर वाज अ फोर्थ स्टेप आल्सो, एंड दिस वाज MCQs and tests. So every Sunday you have a 25 MCQ test of whatever you have studied the last week. जैसे अगर आपने फर्स्ट वीक में लेट्स से इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो संडे को आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का टेस्ट देना है, एंड इन दिस टेस्ट योर रैंक एंड योर मिस्टेक्स आर डिस्प्लेड, ताकि आप अपनी गलतियों से सीख सकें और आप देख सकें कि आप कहां स्टैंड करते हैं एंड हाउ यू कैन इंप्रूव। फॉर एवरी सब्जेक्ट विल डू दिस। सो फ्रॉम रीडिंग टू अंडरस्टैंडिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू MCQs एंड टेस्ट, एवरीथिंग वी कवर हियर। यू हैव टू शो अप एंड स्टडी। और ये अगर आप हर सब्जेक्ट के लिए कर लेते हो, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, इंक्लूडिंग CSAT जो प्रीलिम्स का एक पार्ट है, आपको प्रीलिम्स क्लियर करने से कोई रोक नहीं सकता है। एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम। तो जब हम GS और CSAT की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ द फर्स्ट स्टेज, द प्रोसेस इज क्लियर टू यू कि यार मुझे पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं 12 साल के, और नए MCQs करने हैं खुद को टेस्ट करने के लिए, और मेरी अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर मुझसे कोई 2 साल बाद भी कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे तो मेरी वहां पर गलती ना हो। अब ये काम तो हम कर रहे हैं, आपको भी यहां पर कुछ करना पड़ेगा ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, उसकी भी मैं बात करूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जाम पे। हमने प्रीलिम्स की बात तो कर ली, अब बात करते हैं मेंस की। मेंस का एग्जाम होता है 2025 मार्क्स का। इसमें जो रिटन एग्जाम है, जिसे हम एक्चुअली मेंस कहते हैं, वो है 1750 मार्क्स का, और इसमें इंटरव्यू है 275 मार्क्स का, राइट? जब मैंने 2022 में एग्जाम क्लियर किया था, तो मेरी रैंक आई थी 297 ऑल इंडिया। मेरा स्कोर क्या था आउट ऑफ दीज 2025 मार्क्स? मेरा स्कोर था 970। कॉलेज का एग्जाम नहीं है, बहुत कम नंबर मिलते हैं, ठीक है? लेकिन यहां पर मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं, यहां पर 7 पेपर्स हैं, देयर आर 7 पेपर्स हियर। 7 पेपर्स में आपको पता होगा 1 essay, 4 जनरल स्टडीज, 2 ऑप्शनल के पेपर। इन 7 पेपर्स में से लेट से हर पेपर में मेरे 1.5 मार्क्स कम हो जाते,
हर पेपर में 20 क्वेश्चंस हैं, सो 20 क्वेश्चंस पर पेपर। तो मान लेते हैं कि 3 क्वेश्चन में मेरे एग्जामिनर हर पेपर में 0.5 मार्क्स काट लेता। सो इन एवरी पेपर आई वुड हैव हैड -1.5। ओके, तो मेरा ओवरऑल स्कोर क्या हो जाता? मेरा ओवरऑल स्कोर हो जाता 970 -7 इंटू 1.5 इक्वल टू 959.5। पता है क्या रैंक आती 959.5 पे? रैंक ही नहीं आती। I would be out of the list. I would not have qualified and would not have been standing in front of you today. मैं एग्जाम ही क्लियर नहीं करता। ये जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस मुझे मिली थी यहां पर, ये 0 होता अगर हर पेपर में सिर्फ 1.5 मार्क्स कम आ जाते। रिवर्स सिनेरियो भी है। व्हाट इफ हर पेपर में 1.5 मार्क्स ज्यादा आ जाते? 7 पेपर हैं और सब में 1.5 मार्क्स ज्यादा आ जाते, तो मेरा स्कोर क्या बनता? 980.5। तो रैंक पता है क्या होती? 181। और ये IRS इनकम टैक्स बन जाता इंडियन पुलिस सर्विस। दैट इज द फाइन मार्जिन दैट यू आर ऑपरेटिंग एट हियर। एक एक नंबर पे रैंक चेंज हो जाती है। मेरी रैंक 297 है ना 970 पे, 972 पे रैंक 260 हो जाती। इतना फर्क है एक एक मार्क में। एवरी मार्क मैटर्स। एक एक नंबर की फाइट है। और फाइट कहां है? एग्जाम का नेचर कैसा है कि आपको पेन एंड पेपर पे आंसर्स लिखने हैं। यू हैव टू राइट आंसर्स लाइक दिस। इट्स नॉट कि मैं एक क्वेश्चन और ठीक कर लूं। ऐसे क्वेश्चन दिया होता है, 2 पेज की जगह होती है और 3rd पेज से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। इट्स नॉट लाइक यू कैन टेक मोर आंसर शीट्स। उतनी ही स्पेस में कम टाइम में आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, जो क्वेश्चंस अपने आप में कॉम्प्लेक्स हैं और आपको दूसरों से एक एक नंबर की फाइट करनी है। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ दिस एग्जाम एंड दिस इज द टफेस्ट स्टेज ऑफ दिस एग्जाम। इससे टफ इस एग्जाम में कुछ नहीं है, राइट? एंड दिस इज वेयर ऑल द मेरिट इज डिसाइडेड, क्योंकि एक एक नंबर की फाइट है। अब हमें यह बात तो समझ आ गई कि यार एक एक नंबर की फाइट है, एक एक चीज हमें अलग से पढ़नी है। तो अब यहां की प्रोसेस देख लेते हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बाकियों से बेटर हो जाऊं? कितने लोग मेंस देते हैं हर साल? 13,000 पीपल अपीयर इन मेंस। हाउ मेनी अपीयर फॉर द इंटरव्यू? 3,000। हाउ मेनी गेट सिलेक्टेड? 1,000। अब प्रीलिम्स में तो मैं 13,000 टारगेट कर रहा था। आई वाज सेइंग प्रीलिम्स में कि मुझे बस टॉप 13,000 में आना है। मैं पहले सिलेक्ट हूं लास्ट सिलेक्ट हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेंस देना है। बट यहां ऐसा नहीं है। यहां तो एक एक मार्क मैटर करता है। तो अब मुझे कहां आना है? व्हाट शुड बी माई टारगेट नाउ? अब मुझे बेटर देन अदर्स के लिए अपना टारगेट क्या बनाना है? अब मैं क्या टारगेट करूं? मैं 13,000 में तो आ गया। नाउ व्हाट इज माई नेक्स्ट टारगेट? टॉप व्हाट? क्या टारगेट होना चाहिए? एंड दिस आंसर विल टेल मी अ लॉट अबाउट यू। आप क्या आंसर करते हो इससे मुझे बहुत समझ आ जाएगा आपके बारे में। क्या टारगेट होना चाहिए अब मेरा? शाबाश। क्या टारगेट होना चाहिए? टॉप 3,000, टॉप 1,000, टॉप 100 क्यों नहीं? टॉप 10 क्यों नहीं? 1,000 लोग सिलेक्ट होते हैं ना, तो मुझे जस्ट सिलेक्ट थोड़ी होना है। मुझे तो अपने प्रेफरेंस की सर्विस भी चाहिए। फिर मुझे ये भी चाहिए कि मुझे मेरा होम स्टेट भी मिल जाए। तो यहां तो टारगेट टॉप 100 रखो। यहां तो रैंक डिसाइड हो रही है, ये क्वालिफाइंग थोड़ी है।
3 का टारगेट होगा अगर, तो सिर्फ मेंस क्लियर होगा, इंटरव्यू में बाहर हो जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि ये स्टेप प्रीलिम्स का स्टेप इंडिपेंडेंट था, प्रीलिम्स के मार्क्स यहां काउंट नहीं हो रहे थे, यहां आगे मार्क्स काउंट हो रहे हैं, यहां से रैंक बन रही है। ये बात समझ पा रहे हो, डिफरेंस समझ पा रहे हो प्रीलिम्स और मेंस में? प्रीलिम्स इज प्योरली क्वालिफाइंग, दिस इज नॉट क्वालिफाइंग, दिस इज व्हाट डिसाइड्स माय रैंक। डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द मेंस एंड द प्रीलिम्स? यहां से लाइफ डिसाइड हो जाती है, वहां से सिर्फ मेंस लिखने का मौका मिलता है, स्क्रीनिंग टेस्ट है वो बस। यहां से मेरी सर्विस डिसाइड हो जाएगी। तो क्या टारगेट होना चाहिए? एटलीस्ट टॉप 100 तो टारगेट होना चाहिए। अब आप कहोगे नहीं सर फर्स्ट रैंक टारगेट होनी चाहिए, वो अनरियलिस्टिक बात है, उसमें लक इन्वॉल्व है, राइट? टॉप 200, टॉप 100 ये टारगेट होना चाहिए ना। तो अब आप याद रखना, जब आप मेंस की क्लास अटेंड कर रहे हो, एवरी डे यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, यू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन एवरी डे कि जब मैं मेंस की क्लास अटेंड कर रहा हूं, आस्क योरसेल्फ, लिख लो इसको और रोज पूछना खुद से ये, एम आई अ पार्ट ऑफ द बेस्ट 100 स्टूडेंट्स इन द कंट्री? बिकॉज अब टारगेट टॉप 100 का है। अगेन आई एम टेलिंग यू, पहले दिन नहीं होगा, ठीक है? मान लो आपको किसी चीज में वर्ल्ड चैंपियन बनना है, ठीक है, और आप कहो सर किस चीज में वर्ल्ड चैंपियन बनना है? 100 मीटर रेसिंग में। अभी कौन वर्ल्ड चैंपियन है? यूसेन बोल्ट। क्या टाइम है? 9.58। और आपका क्या टाइम है? लेट्स से 11 सेकंड। तो अगले दिन आप कहोगे मुझे 10.99 पे जाना है, फिर मुझे 10.98 पे जाना है, फिर मुझे 10.97 पे जाना है, फिर मुझे 10.96 पे जाना है। एक बहुत फेमस स्पोर्ट्स कोच है इंडिया के, जिन्होंने ये बात बोली थी, मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगी, कि योर टारगेट इज नेवर टू बीट द वर्ल्ड चैंपियन, योर टारगेट इज टू बीट योरसेल्फ फ्रॉम यस्टरडे। तभी आप यहां पहुंचोगे। आप सीधा इंडिया के बेस्ट 100 स्टूडेंट्स को चैलेंज करोगे, आप हार जाओगे। इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बट अल्टीमेट गोल ये है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। बेस्ट 100 स्टूडेंट्स इन द कंट्री, ये है गोल। एंड नेवर फॉरगेट दैट, जब आप मेंस की पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ये सोचना, जब प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहे हो तो सोचना मैं टॉप 13,000 में हूं, ठीक है। लोग अपनी जिंदगी लगा देते हैं प्रीलिम्स की पढ़ाई करने में, दे डोंट रियलाइज कि गेम तो यहां हो रही है। अब बात करते हैं कि ये अचीव करने के लिए मुझे क्या चाहिए। इन द मेंस एग्जाम, इन वन पेपर, लेट्स से हम उसी पेपर की बात कर लेते हैं जो मैं पढ़ाता हूं, GS3 के पेपर में देयर आर 20 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क्स एंड 15 क्वेश्चंस एंड 10 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है? तो 100 मार्क्स ये और 150 मार्क्स ये। टाइम कितना है मेरे पास? 180 मिनट्स, ठीक है? तो अगर डिवाइड करूं तो यहां मुझे मिलेंगे 70 मिनट्स, और यहां मुझे मिलेंगे 110 मिनट्स। तो मुझे एक 10 मार्कर लिखना है इन 7 मिनट्स, और मुझे एक 15 मार्कर लिखना है इन 11 मिनट्स। ये चैलेंज है। स्पेस का भी चैलेंज है, यू कांट रियली हैव एक्स्ट्रा स्पेस। क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है, क्वेश्चन यहां लिखा होता है, एक पेज की जगह होती है, फिर अगले में क्वेश्चन लिखा होता है, यहां पे जगह होती है, एंड द थर्ड पेज विल हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10 मार्कर के लिए 2 पेजेस ही मिलते हैं, 2 पेजेस से ज्यादा नहीं लिख सकते आप, और 15 मार्कर के लिए 3 पेजेस ही मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिख सकते आप। तो आई हैव अ टाइम चैलेंज, आई हैव अ स्पेस चैलेंज, एंड इन राइटिंग आंसर्स आई हैव टू से दैट आई एम बेटर देन अदर्स। मैं दूसरों से बेटर हूं, और इतना बेटर हूं कि मैं बेस्ट 100 ऑफ द कंट्री का पार्ट हूं। ये क्वेश्चन मुझे खुद से पूछना है रोज, ठीक है? तो अब इसके लिए क्या चाहिए?
अगेन वोटिंग से डिसाइड करेंगे। पहला स्टेप है कंटेंट। मेंस का सिलेबस देखते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द मेन सिलेबस वंस। एक और झूठ जो आपने बहुत सुना होगा, ये सिलेबस है जीएस 1 2 3 4 एसए और ऑप्शनल। मैं इसमें कुछ हाईलाइट करता हूं, आप मुझे बताना मैं क्या कर रहा हूं। यू हैव टू टेल मी, आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ माई हाईलाइटिंग। व्हाट एम आई हाईलाइटिंग, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। क्या हाईलाइट किया मैंने रैंडमली कुछ भी हाईलाइट कर दिया या मैंने कुछ सोच के हाईलाइट किया है? बताओ। हैव आई हाईलाइटेड रैंडमली और इज देयर अ मेथड? वेरी गुड यार, शानदार। मैंने मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं। ठीक है, मेंस में जो पूछे जाते हैं। टोटल मेंस कितना? टोटल मेंस 1750 मार्क्स। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स, ये येलो वाले सब्जेक्ट्स कौन से हैं जो सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं? एथिक्स आएगा 250 मार्क्स का, एसए आएगा 250 मार्क्स का, ऑप्शनल आएगा 250 इंटू 2, ऑप्शनल आएगा 500 मार्क्स का। ओके, इंडियन सोसाइटी लेट्स से अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 75 मार्क्स। IR social issues and governance will be 125 marks. Internal security, agriculture, disaster management will be 100 marks. ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 1000, ये हो गया 200, ये हो गया 100। तो आउट ऑफ 1750 मार्क्स 1300 मार्क्स का तो ऐसा है जो प्रीलिम्स में तो आता ही नहीं। 1300 मार्क्स ऐसे हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में आते ही नहीं है। तो प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कैसे होती है भाई? ये सुना है ये झूठ आपने कि प्रीलिम्स और मेंस की एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करेंगे, हम साथ में पढ़ेंगे प्रीलिम्स और मेंस। कैसे पढ़ोगे भाई? जब यहां 1300 मार्क्स तो अलग हैं, when these are separate, how do you study them together? Can you actually study them together? क्या साथ में पढ़ा जा सकता है इनको? Can prelims and mains actually be ever studied together considering this fact? जब सब्जेक्ट आ ही नहीं रहे हैं प्रीलिम्स में, तो अब धक्के से थोड़ी पढ़ने लग जाओगे उनको प्रीलिम्स के लिए। ऑफ कोर्स दे कांट बी स्टडी टुगेदर। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकालूं मैं इससे? दैट आई हैव टू स्टडी फॉर मेंस सेपरेटली। मेंस के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा सर, साथ में इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कुछ नहीं होता, मेंस के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब मेंस में आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, एम आई पार्ट ऑफ द बेस्ट 100 स्टूडेंट्स इन द कंट्री? ठीक है, मैं खुद से पूछ रहा हूं, एम आई पार्ट ऑफ बेस्ट 100 स्टूडेंट्स इन द कंट्री? है ना? इस डिस्कशन में लेट मी सी व्हाट इज द प्रोसेस। पहला प्रोसेस है, मैंने कंटेंट अच्छे से पढ़ लिया। आई रेड द बेस्ट कंटेंट। मैंने ऐसा कंटेंट पढ़ा कि सारे क्वेश्चंस इससे कवर होते हैं, राइट? आई रेड टॉप नॉच कंटेंट, वैल्यू एडिशन है इसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ है, इसमें डेटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें स्ट्रक्चर से चीजें लिखी हुई हैं, अच्छे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्रेडिबल सोर्सेज से लिखे हुए हैं, कोट्स, कीवर्ड्स, जो आपको चाहिए सब इस कंटेंट में देखेंगे। ऐसा कंटेंट क्या एग्जिस्ट भी करता है कहीं, बट मान लो आपको ऐसा कंटेंट आपके हाथ लग गया और उसमें सब दिया हुआ है, इसके बियॉन्ड नहीं ही पूछते वो मेंस में। ठीक है, तो क्या ये कंटेंट रीड करने से, इसको अंडरस्टैंड करने से और इसको रिवाइज करने से एम आई गोइंग टू बी पार्ट ऑफ
टॉप 100 इन द कंट्री। आपकी वोटिंग का टाइम शुरू हो चुका है, बताओ। मेरे को टॉप नॉच कंटेंट मिल गया, बेस्ट कंटेंट एकदम, ठीक है। मैंने उसे पढ़ लिया है, समझ भी लिया है, रिवाइज भी कर लिया है। मैं टॉप 100 स्टूडेंट्स में आ गया हूं क्या कंट्री के? have I now entered the top 100 students of the country? 15 सेकंड और हैं आपके पास। चलो 92% बच्चों को समझ आ गई। वो कह रहे हैं नहीं सर इससे तो बात नहीं बनेगी। नो, आई एम नॉट। ठीक है, एक स्टेप और ऐड कर देते। इस कंटेंट की मैंने अब आंसर राइटिंग सीख ली। जो मेरा आंसर राइटिंग का स्किल है ना, वो मैंने डेवलप कर लिया कि मुझे कंटेंट स्ट्रक्चर करना आ गया, मेरे को ब्रेनस्टॉर्म करना आ गया, मुझे अपने आइडियाज को पेपर पे लिखना आ गया। सो आई कैन पुट माई थॉट्स ऑन पेपर। जो ये स्किल है आंसर राइटिंग का, ये क्या है कि मैं अपना स्किल जो है वो एक्सरसाइज कर लूं एंड आई एम एबल टू पुट ऑन पेपर वॉट एवर आई हैव रेड। जो मैंने पढ़ा है वो मैं पेपर पे ले आऊं, मैं अपने आंसर्स ऐसे करके लिख लूं तो बात बनेगी, राइट? यही स्किल है। अगर मैं ये कर लेता हूं, नाउ एम आई पार्ट ऑफ टॉप 100 ऑफ द कंट्री। कंटेंट भी सब याद है और आंसर राइटिंग का स्किल भी पूरा है। नाउ एम आई पार्ट ऑफ टॉप 100 ऑफ द कंट्री? बताओ, टेल मी, यू हैव 30 सेकंड्स टू वोट। अब क्या मैं आ गया हूं टॉप 100 में? अभी भी लोग मना कर रहे हैं, 84% कह रहे हैं कि सर इससे भी बात नहीं बनेगी। अब मैं ऐड करता हूं फाइनल स्टेप कि सर मैंने कंटेंट भी पढ़ लिया है, मुझे सब याद भी है, मैंने आंसर राइटिंग स्किल भी डेवलप कर लिया है, एंड फाइनली आई हैव गिवन इनफ टेस्ट ऑल्सो, जहां मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखी है, जहां मैंने स्पेस मैनेजमेंट सीखी है कि मैं 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिख सकता हूं, और मैंने मल्टीपल टाइम्स ऐसे प्रैक्टिस करी है कि मैं 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिख लूं। मेंस में एक दिन में 2 पेपर होते हैं, एक सुबह 9 से 12, एक 2 से 5। ठीक है, इतना दर्द होता है ना हाथ में कि अगर आप में से कोई डॉक्टर है मेरी तरह, तो आप यहां से यहां तक सारे मसल का नाम बता सकते हो कि इसमें भी दर्द हो रहा है, इसमें भी दर्द हो रहा है। इतना दर्द होता है आपके हाथ में मेंस में। ठीक है, बट नाउ इफ आई हैव प्रैक्टिस्ड इट, I have learned time management, I have learned space management, and I have learned how to write 20 questions in 3 hours. Then I can say that probably if I am doing everything right, then probably I can be in the top 100. That's how difficult it is. तो यहां पर ना 2 लोगों का एफर्ट है। एक मेरा एफर्ट है कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूं, बेस्ट आंसर राइटिंग स्किल्स सिखाऊं और टेस्ट की आपकी प्रैक्टिस कराऊं, और एक आपका एफर्ट है कि एक्चुअली आप मेहनत करो। कंटेंट की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, और क्योंकि हम GS3 के पेपर की बात कर रहे थे तो मैं आपको GS3 का ही पेपर दिखाता हूं। ये GS3 का मेंस का पेपर है 2025 का, और साथ में हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लेट्स लुक एट each question together. पहला क्वेश्चन आया था ऑन HDI एंड इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI। ठीक है, ये रहे नोट्स, GS फाउंडेशन के ही नोट्स दिखा रहा हूं आपको, HDI और इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI। आगे देख लेते हैं। Challenges before the Indian economy when world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism. How can these challenges be met? ये रहे नोट्स हमारे GS3 के। इंडिया ट्रेड पॉलिसी एंड अनसर्टेनिटीज, टैरिफ के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए, ग्लोबली ट्रेड में क्या हो रहा है, और फाइनल कि वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म, इंडियन ग्रोथ नीड्स टू कम फ्रॉम डोमेस्टिक कंजम्पशन, डीरेगुलेशन इज द की टू इंडियाज ग्रोथ। एग्जैक्ट जो पूछा था। आगे देख लेते हैं, तो 2 ही क्वेश्चन है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन ऑफ फार्मर्स ऑन सिलेक्शन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स इन इंडिया। हाई वैल्यू क्रॉप्स क्या होते हैं? हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर।
ये रहा हॉर्टिकल्चर, ये रहा डिसीजन का फैक्टर चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न्स, और ये रहा इंडिया का फ्लोरिकल्चर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER पे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डिस्कशन ऑफ ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये रहा इंडिया की एनर्जी का प्रोग्रेस, ये रहा बायोटेक्नोलॉजी और उसमें एनर्जी का एप्लीकेशन। CCUS, डिस्कशन ऑन CCUS। सी वाटर इन कोस्टल एक्विफर्स, सी लेवल राइज एंड कोस्टल रीजन्स में अडेप्टेशन। टेररिज्म और इसकी इंडिया में प्रॉब्लम्स और इसको कैसे काउंटर करते हैं। टेररिज्म, इसकी प्रॉब्लम्स, इसको कैसे काउंटर करते हैं, इंडिया में क्या हुआ है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड नक्सल मुक्त भारत बाय 2026। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, डेटा, मैप, गवर्नमेंट स्कीम्स, केस स्टडीज, वैल्यू एडिशन, रीसेंट कॉन्टेक्स्ट, कीवर्ड्स, कोट्स, जो आपको चाहिए इसमें है। और ये 10 ही क्वेश्चन है, 10 और है, 10 और भी देख लोगे ना तो सब में आपको ऐसा ही दिखेगा। I can show you this for every question because I did not miss a single one. ठीक है, and I can show you this for each question. जैसे ये इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट पे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 19, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, केस स्टडीज, डायग्राम्स, पॉइंट्स, इनिशिएटिव्स, पीस अग्रीमेंट जो एग्जैक्टली पूछा हुआ था। ये मैरिटाइम सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है, तो इश्यूज, इसकी नीड, इसके इनिशिएटिव्स, वे फॉरवर्ड, recent measures like coastal security stream, diagram जो आप बना सकते हो। So everything was covered in the content and that is why आपने सारथी IAS का नाम मेंस में ही सुना होगा, क्योंकि हम यहां जितना एफर्ट लगाते हैं ना और कोई नहीं लगा सकता, और मैं श्योर हूं इस चीज को लेके। That is how much effort we put into our content. सेकेंड आते हैं आंसर राइटिंग स्किल पे। ये स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिखा है ना कंटेंट, आंसर राइटिंग और टेस्ट, ये 3 चीजें करनी है। इसी चीज को अगर आपको कोई ऐसे लिख के दे और आप एग्जामिनर हो, लेट्स से यू आर द एग्जामिनर, एक आपको कोई ऐसे बता रहा है सर कंटेंट, आंसर राइटिंग और टेस्ट करने होते हैं, और मैं आपको बताऊं सर मेंस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम वी नीड कैन सॉल्व विद द 3S solution. The scale meaning how much we read, the structure meaning how we answer, and the speed based on how fast we are. So it is a 3S solution to deal with means. अब आप अगर एग्जामिनर होगे तो एक कंटेंट, आंसर राइटिंग टेस्ट जो आप सुबह से देख रहे हो, कितनी बार सुन चुके हो, इसको मार्क्स दोगे या इसको मार्क्स दोगे? आप अगर खुद एग्जामिनर होते तो आप किसको मार्क्स देते इन दोनों में से? Who would you give marks? इसको या इसको? कहां आपको इनोवेशन दिखेगी? Where would you see innovation? Where would you see some use of the brain? And where would you feel कि यार ये कोई नई चीज है, यार ये बढ़िया चीज लग रही है, इसको नंबर देता हूं मैं। ऑफ कोर्स दिस इज इनोवेटिव, क्योंकि एग्जामिनर ने 13,000 कॉपीज पढ़नी है, वो यही चीज देख रहा है सुबह से, तो उसे कुछ नया देंगे, कुछ स्ट्रक्चर दिखाएंगे, कुछ नई चीज दिखाएंगे, कोई स्किल दिखाएंगे अपना, तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। एंड इट इज माई जॉब टू टीच यू दिस स्किल। दिस इज वॉट वी डू इन राइट स्मार्ट। दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी डू इन राइट स्मार्ट। ठीक है, यही करते हैं हम राइट स्मार्ट में। वी लर्न दिस स्किल एंड देन इट इज ऑन यू कि आप टेस्ट प्रैक्टिस करो। और यहां मोस्ट लोग आलसी हो जाते हैं। हम टेस्ट रखते हैं, लोग देते ही नहीं टेस्ट। अब मैं आपका हाथ पकड़ के आपसे टेस्ट नहीं लिखवा सकता, ये आपके ऊपर है।
सो इफ यू कैन कंसिस्टेंटली आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन कि ये बेस्ट 100 स्टूडेंट्स में हूं मैं कंट्री में, कंसिस्टेंटली अगर खुद से क्वेश्चन पूछोगे तो जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन टेस्ट दोगे, और कहोगे कि हाँ यार कोई नहीं, यूपीएससी की तैयारी चल रही है, बहुत अटेम्प्ट लगते हैं, सबको लगते हैं, तो फिर मत देना टेस्ट, बहुत लोग सेलेक्ट भी नहीं होते, मर्जी आपकी है। नाउ दैट वी हैव सीन दिस प्रोसेस, वी हैव अंडरस्टूड अ फ्यू थिंग्स। हमें अभी तक क्या क्या समझ आया? हमें समझ आया दैट नंबर 1, कंटेंट आंसर राइटिंग टेस्ट ये मींस की प्रोसेस है, प्रीलिम्स की अपनी प्रोसेस है, और दोनों को सेपरेटली करना जरूरी है, राइट? मैं इंटरव्यू की बात अभी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे एकेडमिक डोमेन में नहीं है, उसके लिए कुछ और करना है, उसको बताऊंगा। हमें ये प्रोसेस समझ आई, हमें समझ आया कि हमें ये सारे काम करने हैं, राइट? एंड आई हैव टू एम टू बी इन द टॉप 100 ऑफ द कंट्री। नाउ इसको करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एक शेड्यूल फॉलो करना है, एंड सिंस यू आर हियर इन द 2027 बैच, हमारा टारगेट यही है कि आप 2027 तक सब कुछ खत्म करें। नाउ देयर इज अ चैलेंज, there were some people who started for 2027 in January of this year and you are starting in July of this year, तो आप थोड़ा सा पीछे हो, राइट? आप थोड़ा सा पीछे हो उनसे, एंड ये एक चैलेंज है क्योंकि वो 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं। पेपर आपका भी 27 में और उनका भी 27 में। इस बैच में हम यही अज्यूम करके पढ़ाएंगे कि आपका पेपर 2027 में है ना? तो अब प्रॉब्लम देखो, किसी ने तो जनवरी में स्टार्ट कर दिया था और आपने आज स्टार्ट किया, तो आप 6 महीने पीछे हो। अब इसका क्या सोल्यूशन है? आप 6 महीने पीछे हो, ये बात तो क्लियर हो ही गई। तो अब क्या करना पड़ेगा टू ब्रिज दिस गैप? आपको क्या लगता है अब हम क्या करें कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए? व्हाट कैन वी डू टू ब्रिज दिस गैप, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्या करें? अब एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली। और क्या करोगे? और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अगर किसी से पीछे हैं तो उनसे आगे निकलने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा यार। देयर इज लिटरली नो अदर सोल्यूशन। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको इन लोगों से डरने की जरूरत है, क्योंकि इनके पास उन सारी रिसोर्सेज का एक्सेस है जो आपके पास है। इनको भी मैं ही पढ़ा रहा हूं, इनको भी एमपुरी सर ही पढ़ा रहे हैं, आदित्य कालिया सर ही पढ़ा रहे हैं, हिमांशु खत्री सर ही पढ़ा रहे हैं, पीयूष सर ही पढ़ा रहे हैं, सजल सर इनकी मेंटरशिप कर रहे हैं, वरुण सर इनको एमसीक्यू सॉल्विंग और आंसर राइटिंग सिखा रहे हैं। तो यू नीड टू बी अफ्रेड ऑफ दीज पीपल बिकॉज दे स्टार्टेड 6 months बिफोर यू, सो यू हैव टू वर्क हार्डर। तो अब विद दिस थिंग इन माइंड, लेट अस लुक एट आवर शेड्यूल। हमारा शेड्यूल ये है कि हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। देखो सीधी सी बात है, हम सबसे पहले अपने फाउंडेशन सब्जेक्ट्स क्लियर करेंगे जो बिल्कुल बेसिक्स हैं। आई कांट स्टार्ट विद एथिक्स, राइट? आई हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। तो मैंने स्टार्ट किया विद पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जो बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट्स हैं दो। जब मैंने पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ लिया, राइट, अब अगर मैंने पॉलिटी पढ़ लिया है तो मैं जनरल स्टडीज पेपर 2 को समझ सकता हूं। जब मैंने इकोनॉमी पढ़ लिया है, मैं जनरल स्टडीज पेपर 3 को समझ सकता हूं। ठीक है? तो पहले मैं पॉलिटी और इकोनॉमी करूंगा, उसके बाद देयर विल बी अ टाइम व्हेन यू विल हैव टू अटेंड 2 classes अ डे। ठीक है? मैं अभी बता रहा हूं आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। पॉलिटी इकोनॉमी करने के बाद हम हिस्ट्री करेंगे, ज्योग्राफी करेंगे, और साथ में सीसैट की क्लास चलती रहेगी। ये एक क्लास ही है पर डे यहां तक तो। देन वील डू ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड एंशिएंट मिडिवल। टारगेट होगा कि मार्च तक इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स सारी चीजें खत्म हो जाएं। सो टारगेट विल बी दैट बाय मार्च एवरीथिंग फॉर प्रीलिम्स should be complete. Okay, this is 1 class per day till March to complete everything till prelims, everything for prelims, right? The problem is
कि अगर मैं प्रीलिम्स वाले दिन से प्रीलिम्स पढ़ के गया हूं तो मेंस और प्री के बीच में टाइम बहुत कम है, एटलीस्ट 2 से 3 पेपर तो मैं मेंस के करके भी जाऊं ना। इफ आई एम ओनली प्रिपेयरिंग प्रीलिम्स आई कैन गो एंड क्लियर प्रीलिम्स, बट प्री के बाद मेरे पास 2 महीने हैं और अब मुझे पूरा मेंस पढ़ना है, तो आई एम डेस्टिन्ड फॉर फेलियर। तो साथ के साथ हम एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ मेंस, कुछ कंटेंट ऑफ मेंस, कुछ मेंस की आंसर राइटिंग और स्ट्रक्चरिंग, राइट, और थोड़ा बहुत एस्से, इतना तो हम पहले करके जाएंगे। एंड क्योंकि हम ये यहां पर कर रहे हैं तो हमें 2 क्लास एक दिन में अटेंड करनी होंगी फॉर 3 मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स हमें ये काम करना होगा। आई एम टेलिंग यू दिस इन एडवांस सिंपली बिकॉज वन रीजन, सेकेंड रीजन इज अब इट इज योर चॉइस, यू कैन से कि नहीं सर बहुत ज्यादा है, तो फिर यहां मत आओ। आसान ये बिल्कुल नहीं है, अगर आपको किसी ने बोला है कि यूपीएससी आसान है तो आपको झूठ बोला है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट हमें ही करना है, तो ये ऐसे करना पड़ेगा। एंड दिस इज द ब्रॉड शेड्यूल दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। ये शेड्यूल डिजाइंड ऐसे ही है कि पहले आपके मार्च 31 के डेट पे प्रीलिम्स का सब कुछ खत्म हो जाए, ताकि अप्रैल एंड मई का टाइम आपके पास हो खुद पढ़ने के लिए। प्रीलिम्स से पहले 2 महीने यू नीड टाइम टू रिवाइज एंड कंसोलिडेट एवरीथिंग, वो आपको मिले। और मेंस का भी एक सिग्निफिकेंट चंक आपका प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि प्री क्लियर करने के बाद आप लोग एकदम से स्ट्रेस में ना आ जाओ कि यार अब इतना सारा सब्जेक्ट में कैसे पढ़ूंगा। दैट इज द आइडिया। नाउ प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड दिस इज द लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू। और ये ना अपनी डेस्क के सामने जहां भी आप पढ़ने का प्लान कर रहे हो ना, प्लीज ये बात बोल्ड लेक्चर्स में लिख लो और इसको मत भूलना कभी। सॉरी, क्या लिखा है बोर्ड पे? वॉचिंग अ वीडियो लेक्चर डज नॉट इक्वल स्टडिंग। वॉचिंग अ वीडियो लेक्चर इज नॉट इक्वल टू स्टडिंग। वीडियो लेक्चर देखना, जैसे अभी आप एक वीडियो लेक्चर देख रहे हो, ये पढ़ाई करना नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इसमें एफर्ट कौन कर रहा है? हु इज डूइंग द एफर्ट हियर? आप ये लेक्चर देख रहे हो, एफर्ट कौन कर रहा है? हु इज डूइंग द एफर्ट? आई एम डूइंग द एफर्ट। ये जो काम आप अभी कर रहे हो इसको पढ़ाई नहीं कहते। एक लेक्चर देखने के बाद यू वॉच अ लेक्चर, you revise its notes, then you close the book, close the notes and write everything that you have learned in your own words. बुक बंद करके खाली पेज पे अगर आप लिखोगे, which is what I call active recall, and then you test yourself, this is equal to studying. ठीक है। हाँ, इसमें टीचर एफर्ट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। आपका एफर्ट यहां से शुरू होता है, फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड, दिस इज योर एफर्ट। ये बात प्लीज लिख लो, जान लो, याद कर लो। वीडियो लेक्चर देखना पढ़ाई करना नहीं होता। हमें कई बार लगता है मैंने लेक्चर देख लिया, मेरा आज का काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखो अभिलाष पूछ रहा है लाइव क्लास है या रिकॉर्डेड क्लास है। अब अभिलाष ये कोई टाइम है ये चीज पूछने का? क्लास खत्म हो गई, 10 बार मैंने क्लास में वोटिंग करा ली, आपका कमेंट मैं पढ़ रहा हूं, आप कह रहे हो रिकॉर्डेड क्लास है।
ये बात समझ आ रही है? दिस इज द लास्ट मैसेज आई हैव फॉर यू. प्लीज याद रख लो कि लेक्चर देखना, लेक्चर में कमेंट में क्वेश्चन पूछना, लेक्चर में डाउट्स पूछना, लेक्चर में टीचर की बात अच्छे से सुनना, ये पढ़ाई करना नहीं होता भाई. पढ़ाई करना होता है एक्चुअली खुद मेहनत करना. एंड आई विल लीव यू विद दिस थॉट. आपके जो ये प्रोसीजरल डाउट्स है ना यार, कि मेरे को टेस्ट कहाँ दिखेगा पोर्टल पे, देखो ऑनेस्टली मी आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज अ वेस्ट ऑफ माई टाइम एंड योर टाइम. ये आप पूछ सकते हो यार सेल्स टीम से, काउंसलिंग टीम से, आप किसी से भी पूछ सकते हो. ठीक है. फ्रॉम मी मे बी वी शुड लर्न सम थिंग्स अबाउट हाउ टू क्लियर द एग्जाम. है ना. क्लास कितने बजे होगी ये जवाब मैं ना दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा. मैं आपको ये बता देता हूं कि अपनी डेस्क पे और अपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने दिमाग में ये थॉट लिख लेना जो बोर्ड पे लिखा है. अभी बोर्ड पे जो लिखा है ना वो अपने सामने लिख के रोज सुबह पढ़ लेना एंड पुट दिस इन योर माइंड और एग्जाम निकल जाएगा. ठीक है. दिस इज वॉट यू कीप इन माइंड एट ऑल टाइम्स. इफ दिस इज नॉट इन योर माइंड यू आर नॉट डूइंग इनफ एफर्ट. जब खुद को रिलैक्स होते हुए देखो ना कि अरे कोई नहीं कल कर लेंगे, जब लगे ना कि यार मैंने तो आज पढ़ाई कर ली, और जब लगे ना यार बैकलॉग हो गया, इतने सारे लेक्चर हैं, जल्दी जल्दी लेक्चर देख लेता हूं, ये तीन चीजें आप अपने डेस्क पे लिख लो, आप अपने डेस्क पे लिख लो, आप अपने दिमाग में डाल लो. और ये सब करने के बाद भी, मेरे बेस्ट एफर्ट्स के बाद और आपके बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी हो सकता है कि आप 2027 में सिलेक्ट ना हो, क्योंकि लक आपके साइड पे नहीं था. बट ये सब करने के बाद क्या होगा पता है? पता है क्या होगा ये सब करने के बाद? अगर हम ये सब कर लेंगे ना, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो वी विल बी 2011 इंडिया, नॉट 1983 इंडिया. जहां हो सकता है एक आधी साल कभी कुछ खराब हो गया, फाइनल में बाहर हो गए, लक खराब नहीं चली, बट कंसिस्टेंटली डोमिनेंस दिखेगी. कंसिस्टेंटली आप फील करोगे कि आप लोगों से बेटर हो और आपने एक्चुअली कुछ अचीव किया है. दैट इज वॉट यू डू हियर. एंड दिस इज वेयर आई एंड, जहां से हमने स्टार्ट किया था कि इस पे फोकस करो. और ये छोटे डाउट्स हटा के जो मैं कह रहा हूं इस चीज को जान लो. इफ यू मिस दिस थॉट एंड यू मिस दिस सेशन, you might waste 1 year of your life. ठीक है. this is what we want. जब ये होगा ना तो डाउट नहीं होगा सर दोबारा अटेम्प्ट दूं या नहीं, होगा कि हाँ सर मुझे पता है मैं बेस्ट हूं, मुझे पता है मैं बेस्ट हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है. एक बार लक खराब हो गई, इंटरव्यू में कम मार्क्स आ गए, एक पेपर खराब चला गया, तो क्या हो गया, मेरा हो जाएगा. खुद बोलोगे आप मुझे आके कि मेरा हो जाएगा. बट उसके लिए वो तीन चीजें याद रखनी है. That is what I'll leave you with. Thank you.